Good afternoon to all of you. Welcome to class 9. Welcome to all of you in physics class. Today we will discuss about laws of conservation of momentum. Okay, and after that we will solve two problems, numerical problems. Okay, and once again I would like to tell you that welcome to all of you in physics class. And here is the chapter. Our topic is here. Law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum states that when two bodies act upon one another, their total momentum remains constant, provided no external force are acting. Okay, and momentum is never created and nor destroyed. Okay, here is given that two bodies. Once again, I would like to explain you. Two bodies act to one another, then their momentums. As we know that momentum is the product of mass and velocity of the body. Okay, and so here is telling that momentum remains constant uh, when the external force are not acting. Okay, and one another thing is that momentum is never created and nor destroyed. Okay, never created and not destroyed. Okay, and there is a problem, numerical problem related with this momentum. Okay, a question is given: a bullet of mass 10 kilogram, 10 gram. Okay, 10 uh, is fired, that is it is given 1 kg. Okay, this is 1 kg is given, not 10 gram, is 1 kg. I think say 10 gram also. Okay, 10 gram is given. Okay, once again 10 gram is given, is fired from a gun of mass 6 kilogram with a velocity of 30 meter per second. Calculate the recoil velocity of the gun. Here is recoil velocity is the another new thing is that here recoil velocity means that whenever we fire a bullet from the gun, then bullet goes forward with a velocity, and there is an equal and opposite velocity, opposite force is acting backwards to the gun. This backward force is called recoil velocity of the gun. Okay, and now here is given mass of the bullet is 10 gram. We divide 1000 to 10 to convert in the kilogram. Okay, and now here is 0.01 kilogram. Now velocity of the bullet is 300 meter per second, and mass of the gun 6 kilogram. Okay, and recoil velocity is we have to find out. Okay, and so now by the law of conservation of energy, we putting these values of relation, that mass of bullet into, that is here is given momentum of the bullet is equal to momentum of the gun. Okay, and so here given mass of bullet m is, and velocity of the bullet mv is momentum of the bullet, and here mass of the gun into recoil velocity of the gun, here is also mv, that is momentum of the gun. Okay, that means that mass of the mass of the bullet into velocity of the bullet is equal to mass of the gun into recoil velocity of the gun, that is momentum of the bullet is equal to momentum of the gun. And now putting these values, we have the value of their is recoil velocity of the gun is here is given 0.5 meter per second. Okay, and next another question is here. It is some different question. It is given that a stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. Okay, what is the force of friction between the stone and the ice? Okay, once again I would like to explain you that a stone is having mass 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second. This is the stone is thrown with a velocity of 20 meter per second, and now it is thrown on the surface of the frozen lake that is full of ice, is called frozen lake.
Okay, there will be less temperature, there will be temperature will be minus 0, minus 0, minus 10, minus 15, minus 20 are the frozen surface of the lake. Okay, and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. After traveling distance of 50 meter, it comes to rest, it will stop. Okay, and when what is the force, we have to find out what is the force of friction between the stone and the ice. After frictional force also it stops to slide, it stops to slide. Okay, and so we have to find out the friction between the stone and the ice is already given, and after that we will solve the question. Given initial velocity u is given 20 meter per second. Okay, starting velocity u is given because here is given that stone is thrown with a velocity of 20 meter per second. Okay, and final velocity v is 0. It is given that here is given it comes to rest lake after throwing the stone, after traveling a distance 50 meter, it comes to rest, that means it will stop, and so therefore final velocity v will be 0. Okay, distance s is 50 meter. Okay, and mass is given 1 kilogram. Mass of the stone is 1 kilogram. And so here we for solving the question we use the third equation of motion. Okay, it is given v square equal to ev square plus 2as, where v is the final velocity, u is initial velocity, 2a is acceleration, s is distance. Okay, and now putting these values we get here, that is here is 400 plus 100a, and 100a is transposing, it goes to the left side, then the sign will be changed, and so minus 100a equal to 400, and by applying the values of a, and here is the values of a will be 104 are there 4, that is minus 4 is acceleration will be minus 4 meter per second square. Meter per second square is the SI unit of acceleration. Okay, and now we have to find out the here the force equal to mass into acceleration. Mass is given 1 kilogram, and acceleration is given, here is calculated minus 4, and so 1 into minus 4 equal to minus 4 Newton. Newton is the unit of force. Okay, and so frictional force, that is the equal to 4 Newton. That here is a negative sign indicates that the friction force opposes to the motion, opposing to the motion. Okay, and so here negative sign this. And now once again, अब एक बार मैं फिर आपको बताऊं, इसे हिंदी में आप समझ लीजिए इसको आसानी से, अच्छी तरह से, और बिल्कुल अच्छी तरह से वाच कीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा, और ये यूट्यूब पे मैं भेजूंगा इसे, और कॉपी में लिखने के बाद मुझे दिखलाना भी है, ठीक है, और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए ध्यान से देखिएगा इसे तो समझ में आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है क्या, ये इसे कहते हैं हम लोग क्या, संवेग का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं इसको हम कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज, दो वस्तु जब एक दूसरे पे काम करते हों या फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, तो कह रहा है उनका मोमेंटम जो है इक्वल होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब नियत होता है, फिक्स होता है। जब कब फिक्स होता है, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया हो, तब बाहर से फोर्स लगाने के बाद फिक्स नहीं हो पाता है। तो ये और एक चीज़ और जान लीजिए, मोमेंटम कभी हम ये जो संवेग जो होता है उसे हम ना तो उसे निर्माण कर सकते हैं, ना तो इसका नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण से कह सकते हैं हम लोग मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप देखेंगे, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे इस तरह से इसे गौर से देखेंगे, इसी पर आधारित है ये। एक बुलेट में बंदूक से गोली चली है, वो 10 ग्राम उसका वजन है, इस फायर गोली चलाई गई है, गन के सहारे निकला है वो बंदूक से, और जिसका बंदूक का मास है 6 किलोग्राम। ठीक है, और विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बुलेट जो बाहर निकला है। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। आप जान लीजिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होता है। जब बंदूक से गोली चलती है, गोली बहुत तेज़ से आगे की ओर बढ़ती है, कोई फोर्स के सहारे पूरा तेज़ से किसी वेग से आगे की ओर जाती है। ठीक है, और ठीक उसी के बराबर एक फोर्स लगता है जो बैकवर्ड गन बंदूक के अंदर लगता है एक फोर्स, वो उसी झटके से पीछे की ओर आता है वो। तो ये जो पीछे की ओर आने का जो फोर्स है वो हम कहते हैं, उसे हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द
गन, बंदूक का पीछे से जो झटके के साथ पीछे के आने का जो वेलोसिटी है उसका, उसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। जिस रफ्तार से, जिस वेग से वो पीछे की ओर गन बंदूक आता है उसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो देखिए सॉल्यूशन है, मास ऑफ द बुलेट 10 ग्राम, इसे हम लोग 100,000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में बन जाएगा, या फिर डिवाइड करें 0.01 किलोग्राम हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 300 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब एक ध्यान देंगे आप लोग, एक ग्राम है, ग्राम का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है मास का, मास का किलोग्राम होता है, इस कारण से हम लोग इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मास ऑफ द गन ये 6 किलोग्राम दिया गया है, और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। तो देखिए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए मोमेंटम ऑफ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है हमारा, है मोमेंटम यहाँ दिया गया, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, मतलब कि गोली का मोमेंटम और बंदूक का मोमेंटम दोनों बराबर लिखा गया, ठीक है। और इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, और हमें निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो देखिए ये वैल्यू आया हमारा, क्या काटने के बाद देखिए आया 0.5, 1/2 आया, तो इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 मीटर पर सेकेंड आया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा हटके है उससे, देखिए ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, एक पत्थर 1 किलोग्राम का है, वह 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका गया है, और वो चलता है, और एक क्रॉस था, वो फेंका गया कहाँ पे, तो लेक, एक ऐसा लेक है जिस पर बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरा बर्फ़ भरा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, मतलब हाँ बहुत ही लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे, इस कारण से। एंड कम्स टू रेस्ट, और कुछ दूरी पर 50 मीटर, कुछ दूरी मतलब 50 मीटर की दूरी तक वो पत्थर जाता है स्टोन, और जाकर के रुक जाता है, वो कम्स टू रेस्ट होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है बर्फ के में और स्टोन के बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, घर्षण बल इसे हम कहते हैं, इस कारण जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन और आइस के बीच में, पत्थर और ये आपका बर्फ के बीच में आपका फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल क्या है, ये हमें पता लगाना है। आप देखें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग u है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी भी 0, क्योंकि यहाँ लिखा गया आफ्टर ट्रेवलिंग इस डिस्टेंस, लिखा रेस्ट, ये जो फेंकने के बाद में जो पत्थर फेंकेंगे तो कम्स टू रेस्ट, स्थिर अवस्था में आएगा, इस कारण से फाइनल वेलोसिटी इसका हम 0 देंगे, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है 50 s कहेंगे, 50 मीटर, और इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा v का वैल्यू निकाल, ये v का वैल्यू दिए 0 आया, यहाँ देखिएगा u स्क्वायर 20 का s 20 हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और 2as एक्सेलेरेशन हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये 100 a ट्रांसपोज करेगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो साइन इसका बदलेगा, -100 a इक्वल टू 400, a इक्वल टू -400/100, तो देखिए -4 इसका आंसर है। एक्सेलेरेशन है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन का ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, इससे आप याद रखेंगे हमेशा। फिर देखिए आगे हम लोग फोर्स निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मास 1 किलोग्राम था, और ये हम देखिए यहाँ पे -4 यूज़ किया हम लोग, एक्सेलरेशन अभी आया हमारा, तो -4 न्यूटन, n न्यूटन हो गया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है, इसलिए हमने न्यूटन लिखा है n, ठीक है, -4, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारा काम किया, 4 न्यूटन काम किया। ये जो माइनस साइन है वो बतलाता है क्या, कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फ्रिक्शन अपोजिट बिटवीन मोशन, कहने का मतलब क्या कि फ्रिक्शन घर्षण बल है वो अपोजिट द मोशन गति को रोकने काम करता है, तभी जाकर के 50 मीटर के बाद जाकर के वो स्टोन रुक जाता है, इस कारण से फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही रुकता है। वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, घर्षण बल होता है जो दो सरफेस के बीच में लगता है, और इसी कारण कोई वस्तु आगे जाकर रुक जाती है, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने सॉल्व किया, ये हमारा आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और इसे अच्छी तरह से आप याद करेंगे, तैयारी करेंगे, और अपने कॉपी पे लिख करके आप इसे नोट करेंगे, और कमेंट भी दे सकते हैं आप, खास करके वीडियोस का यूट्यूब पे कमेंट देंगे आप, ठीक है। और आप सबको फिर से एक बार गुड आफ्टरनून, फिर से एक बार, और बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, ओके।